Hey guys, welcome back to my channel. Today I am again on road and making another vlog, but in this time I am going to Alipurduar. Actually, on my earlier vlog, my Balurghat road trip, I have mentioned that in a short while I am going to make a hill drive, but unfortunately this time I am not going to drive in a hill destination. Rather I am going towards Alipurduar to attend some marriage ceremony. So after doing that, I have a plan to visit BTR, Buxa Tiger Reserve again. I have already made a small vlog on Jayanti, but that time I was in a hurry, so could not able to make a detailed review on Jayanti. So this time I have a plan to cover its scenic views, beautiful butterflies, birds and whatever available. So stay tuned with me till the end of this vlog, and I hope I could be able to show you some excellent views and excellent treasures of Jayanti. So in my next stop, meet you towards the narrow and green roads of Buxa Tiger Reserve. So friends, again I am entering in Buxa Tiger Reserve. You can see the flyover which goes towards Assam, and the underpass, a beautiful road covered with green forest, straight goes towards Rajawat Kawa and then Jayanti and Buxa. Those who are following me on my channel, they might have seen that I have already done a small vlog on my Jayanti trip. अनफॉर्चुनेटली इस टाइम में भी मैंने जैसा सोचा था कि नाइट हॉल्ट करूँगा और कुछ अच्छा व्यूज़ कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आई हैव टू चेंज माई प्लान. दो आई एम गोइंग टुवर्ड्स जयंती, बट प्लान में कुछ बदलाव आया है. नाइट हॉल्ट में नहीं कर रहा हूँ, बट बटरफ्लाइज जो इस टाइम काफ़ी दिखाई दे रहा है उधर, मैं सुना है, और कुछ सीनिक व्यूज़ मैं ज़रूर इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा. सो मिलते हैं राजावात खवा टिकट काउंटर क्रॉस करने के बाद फिर से एक बार आप लोगों से. So this is the parking area of Rajawat Kawa, and I am now going out. टिकट लेना हो गया है इस बार. लकीली उन लोगों ने मेरा जो पर हेड का चार्ज है 120 रुपीज़, वो इन लोगों ने नहीं लिया. ओनली व्हीकल का चार्ज 400 रुपीज़ लिया है. कुछ दिन पहले मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो गाड़ी अंदर लेने के लिए इन लोगों ने बोला, अंदर ले जाना पड़ा, फिर टिकट हुआ. However, ticket is done and I am now on the way to Jayanti. This is the check post and entry of Jayanti and Buxa. Here I have to show my ticket, and on my left side the road goes towards Kalchini. Kalchini नाम का एक छोटा सा जगह है, एंड हसीमारा के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग हसीमारा स्टेशन में ही आकर उतरते हैं इफ़ दे वांट टू विजिट चिलापाता, राजावात कावा, बक्सा एंड जयंती. दिस इज द गेट. I have to show my ticket. Jayanti.
इस टाइप का फॉरेस्ट का मज़ा ही कुछ और है। डेंसिटी फॉरेस्ट में स्टिल इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। जो लोअर बक्सा साइड है, मतलब जो मैं पीछे छोड़ कर आया, वहाँ पर तो इलीगल लॉगिंग बहुत होता है, बट इस एरिया में अभी तक उतना इफेक्ट नहीं है। देख सकते हैं आप कितना पुराने पुराने पेड़ है स्टिल, एंड these trees are shelter of numerous birds, insects, invertebrates. ऐसे ट्रीज गोरुमारा नेशनल पार्क में भी था, बट yeah, now we are on the junction of Buxa and Jayanti. Straight goes towards Buxa and we are now going right towards Jayanti. दिसंबर में मैं एक बार बक्सा आने का प्लान करूँगा, और फोर्ट और आसपास के जो एरिया है वहाँ पर कार नहीं जाता। संतराबारी नाम का एक जगह है जहाँ पर कार छोड़कर ट्रेक करके जाना पड़ता है। दैट इज़ ऑल्सो एडवेंचरस। सो दिसंबर में मैं ट्राई करूँगा ओनली बक्सा कवर करने के लिए। So we are now going to cross the beautiful Bala river. इस रिवर के साइड में भी काफ़ी सारे बटरफ्लाइज मिलते हैं। लास्ट टाइम मैं जब आया था, बहुत शॉर्ट टाइम में आया था, कुछ बटरफ्लाइज दिखे थे। So this is the Bala river. We are now crossing it. Beautiful weather, beautiful. तो भैया हम पहुंच गए हैं जयंती फिर से। On my left side, this is a SSB establishment. एक लोकल गाइड जो इधर का बहुत पुराना है, उनसे बात हो गया है मेरा। काफ़ी सारे टूरिस्ट है। ये जगह आप लोग पहले भी देख चुके हैं मेरे व्लॉग में। This is the entry to the embankment area of Jayanti river, and on my right side Jayanti High School, which is now closed. जो मैं बोल रहा था कि प्रदीप दे नाम का एक गाइड है इधर का, उनसे बात हो रहा था। नेक्स्ट टाइम उनका एक होम स्टे है, अच्छा, वहाँ पर नेक्स्ट टाइम आकर एक बार तो रहना है। तो भैया अभी हम पहुँच गए हैं
जयंती रिवर एरिया में आप देख सकते हैं व्यूज़ बहुत बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं जयंती में फिर से एक बार, और इस बार मैं यहाँ का एक लोकल गाइड जिसका नाम है कुर्बान, जो लोग एक्चुअली बटरफ्लाइज और बर्ड्स के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने कुर्बान को जानते होंगे। उसका होम स्टे पर आया हूँ, मैं दिखाऊंगा उसका होम स्टे इन डिटेल्स में। अभी मैं वेट कर रहा हूँ उनके लिए। एंड आप देखिए, व्यूज़ देखिए, ये देखिए एक कार जा रहा है रिवर को क्रॉस कर कर सीधा जा रहा है महाकाल की तरफ। एंड ब्यूटीफुल ब्लू स्काई एंड द पैनोरामिक व्यू ऑफ जयंती रिवर। जब तक वो आए, एक्चुअली वो बाज़ार एरिया में गया है, मेरे लिए वेट कर रहा था कि सोच रहा था ये आ पाएगा या नहीं। तो दिस इज़ द स्मॉल होम स्टे ऑफ कुर्बान खान। एक्चुअली मेरा इधर आज रहने का प्लान था, लेकिन प्लान इस बार मैं पोस्टपोन किया। पूरे दिन उनके साथ बिताऊंगा और रिटर्न हो जाऊंगा। बिफोर गोइंग टू एक्सप्लोर द जयंती एरिया, लेट्स चेक द होम स्टे ऑफ कुर्बान। Simple but बहुत scenic. This is the veranda area, and from here you can see the entire view of riverbed and Bhutan hills. And this is the room. नाइस। इस एरिया में ऐसे फैसिलिटीज़ मिलना पहले तो हम लोग सोचते भी नहीं, लेकिन टूरिज़्म अभी काफ़ी डेवलप हुआ है। दिस इज़ अ 4 पर्सन रूम एक्चुअली, 4 आदमी रह सकता है इधर। तो चलिए कुछ बात करते हैं, क्या रेट है, क्या डिटेल्स है इसका। So friends, he is Kurban Khan, one of the experienced field guide of Jayanti area. He is specialized on butterflies also, and birds who love butterflies and birds. I think they already know Kurban. And behind me, this is the होम स्टे। नाम क्या है इसका होम स्टे का? फेयरी ब्लूबर्ड होम स्टे। आप अभी इनसे सुनिए, इनका जो पैकेज है, डिटेल्स है, क्या है। आप कुर्बान के जवान से सुनिए, बोलो। ये हमारा फेयरी ब्लूबर्ड होम स्टे है। यहाँ पे 4 या 5 आदमी रह सकता है एक कमरे पे। यहाँ पे जो अभी रूम दिखा है ना, ये 4 ऑक्यूपेंट के लिए है। यहाँ पे 2 कमरा है। तो यहाँ पे मेनली ये क्या हुआ है कैपेसिटी, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ फोटोग्राफर्स आते हैं, तो वो क्या होता है कि डबल बेड अगर हो तो उनको कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि कमरा ज़्यादा लेना पड़ता है। 4 या 5 बंदा हो तो यहाँ पे 4 बेड्स होने की वजह से उनको क्या होता है, एक ही कमरे पे वो शेयर कर लेते हैं। तो एक्चुअली प्रोग्राम जो होता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन का होता है, इसलिए उनको बहुत कॉस्टिंग बहुत ही कम पड़ जाता है। इसलिए यही सिस्टम पे क्या हुआ है, 2 कमरा यहाँ फेयरी ब्लूबर्ड पे। और कितना है चार्ज, कितना है ये 4 आदमी के लिए आपको 1600 रुपये पड़ता है। अच्छा। नॉर्मली यहाँ पे
डबल मतलब बेड 400 पर हेड। हाँ पर हेड 400। अच्छा और अभी खाने का पैकेज जो है वो हम लोग 600 कर रहे हैं। अच्छा क्योंकि अच्छा। पहले इससे पहले हम लोग 500 करते थे, लेकिन इस साल काफ़ी जिनिस जो है उनका महंगाई बढ़ गया है। महंगाई बढ़ गया है, इसकी वजह से ठीक 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 600 किया हुआ है। ठीक ठीक है ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में कुर्बान का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है सब दे दूंगा। इफ़ यू वुड लाइक टू विजिट हिज प्लेस एंड आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्लेस बिकॉज इस होम स्टे का व्यूज़ ही सिर्फ अच्छा नहीं है, प्लस आपको कुर्बान जैसा गाइड मिलता है जो इस एरिया को बहुत अच्छी तरह जानता है, चप्पा चप्पा जानता है वो। और आपको बटरफ्लाइज दिस टाइम ऑफ द ईयर नवंबर एंड अप्रैल 2 टाइम्स यू कैन सी वेरियस टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स ऑल्सो। बर्ड्स तो बहुत सारे हैं इधर, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर some opposite side of a river bed that is called the Mahakal area to get some butterfly shots. Hope we will get some good mud puddlings of butterflies. तो मिलते हैं उधर आपसे। So guys, this is the gypsy of Kurban. Now leaving my car and getting this gypsy because दिस इज़ अ टोटल ऑफ रोड 4x4 चाहिए इधर, इसलिए हम जिप्सी में आगे जाएंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स महाकाल on Kurban's gypsy. This is actually the riverbed of Jayanti which is totally dried up now. मैं अपना कार भी ला सकता था यहाँ तक, लेकिन कुर्बान ने बोला कि आप अकेले हो, ऊपर से लौटना है आपको, छोटे छोटे रिवर स्ट्रीम है, ये क्रॉस कर जाता मेरा गाड़ी, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया। अगर बाई चांस फंस जाए, कुछ हो जाए तो experience is really good. Full off-roading with gypsy. We are now crossing river stream. पक्का रिवर के बीच से जा रहा है यहाँ। Low. Without 4 low it is impossible to cross this road तो नहीं, ऑफ रोड। व्यूज तो देखिए आप, breathtaking views of Bhutan hills. So we are in the end of जयंती रिवर। एक्चुअली मेरा पीछे जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर महाकाल नाम का एक जगह है। इट इज़ स्टैलेक्माइट केव एक्चुअली, और कुछ भगवान का उधर कुछ मूर्ति वगैरह ऐसा कुछ है, लेकिन आज हम वो सब देखने नहीं आए। मैं देखने आया हूँ बटरफ्लाइज़, और मेरे चारों तरफ बहुत सारे बटरफ्लाइज़ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
You can see a bunch of butterflies, and Kurban is trying to get some wide angle shot of this beautiful butterflies. Excellent, excellent, awesome experience, awesome experience. In this particular area, it is called the boundary nala. Actually on the right side is India and the left में जो हिल्स दिखाई दे रहा है ये भूटान का है, और ये नदी का जो साइड में हम लोग खड़ा है ये इंडिया का है और उस साइड है भूटान में. सो नदी बीच से गया है तो इसको इसलिए बोलता है बाउंड्री नाला. एक्चुअली इट्स अ लैंडस्लाइड एरिया. बहुत दिन पहले शायद यहाँ से कोई बड़ा लैंडस्लाइड हुआ होगा. After a lot of discussion, we have finally decided to visit Chota Mahakal, and the surrounding views which you have seen is in the base of this Chota Mahakal cave. तो अभी हम ट्रैक करके जा रहे हैं महाकाल केव को. देखते हैं उधर पर क्या मिलता है व्यूज़. सो स्टे ट्यून्ड. So guys, this is the famous Chota Mahakal. It is actually a limestone cave. और भी ऊपर में बड़ा महाकाल है. That is a stalagmite and stalactite formated limestone cave. Actually that type of limestone is quite rare. So guys, now I am in the middle of Jayanti river, and we are now going to cross the river stream where a bolero is got stuck. Actually 4x4 नहीं होने से ऐसे रोड में जाना नहीं चाहिए.
You can see the bolero is getting stuck. Actually, its differential got stuck in a boulder. And this is the magic of 4 low. उठे दो पानी में कोई डाल दो सो गाइस अभी आफ्टर लंच हम जा रहे हैं और एक दूसरी स्पॉट में. एक्चुअली वो है चुनिया बस्ती और भुटिया बस्ती, ये रीजन में. इस तरह का अभी भी रोड कंडीशन ठीक है काफ़ी. एटलीस्ट फ्री स्टाइल जैसे गाड़ी को चलने लायक तो है. भी रिवर क्रॉसिंग এখানে তো কি ছিল জানি এটা ওটা ব্রিজ, এটা জয়ন্তী ব্রিজ ছিল. আসামের সাথে কানেক্ট হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রিটিশ পিরিয়ডে ব্রিটিশরা করেছিল শর্টকাট. তারপর এই রুটে ডলোমাইটও যেত না. হ্যাঁ সোজা এটার উপর দিয়ে তো গাড়ির আমার ইঞ্জিন পুরো পাওয়ারফুল আছে. হ্যাঁ 1500 সিসি ইঞ্জিন. ইকো স্পোর্ট আছে না, ইকো স্পোর্ট আর এটার সেম ইঞ্জিন. एक्चुअली इस एरिया में पहले ऐसा सीन नहीं था, लेकिन भूटान पहाड़ से कंटिन्यूअस लैंडस्लाइड होने से ऊपर से पत्थर नीचे आकर ये एरिया का जो बेड है काफ़ी ऊंचा कर दिया है. और 1993 में जो डिवास्टेटिंग फ्लड हुआ था उसके बाद ये एरिया का पूरा जियोग्राफिक सिनेरियो ही चेंज हो गया है. तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? चुनिया बस्ती. हाँ वॉच टावर जो है पहले छोटा सा बस्ती मिलेगा. हाँ छोटे बस्ती. हाँ ये ज़्यादा घर नहीं है यहाँ पे, 16-17 घर है. अच्छा ये एक्चुअली छोटा सा गांव है. और ये गांव बरसात में पूरा ऐसा रिमोट एरिया में है कि दोनों तरफ नदी है इसके. हाँ, हाँ. जयंती नदी और इस बस्ती के उस पार कुछ बाजे कोला चुनिया नदी वगैरह है. हाँ हाँ बरसात में लोग कहीं भी जा नहीं पाते हैं. अच्छा अच्छा 16-17 घर है यहाँ पे. हाँ 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 होटल है. उधर में भी तो एक होम स्टे है ना. एक छोटा सा होम स्टे है. यहाँ पे टोटल वोटर्स है 68 वोटर्स. हाँ 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 और इसी की वजह से वहाँ पे पंचायती व्यवस्था किया है, क्योंकि ये बरसात में कहीं जा नहीं पाते. अच्छा अच्छा 68 वोटर को लेके एक पंचायती व्यवस्था किया गया है. हाँ, ये हाँ. कुमार ग्राम रॉकेट अंडर पे पड़ते हैं. अच्छा तो इनका जो काम है यहाँ का, जैसे कि NREGS बस मतलब जो बिहारी का काम हो, हाँ, ज़्यादातर हाँ. लेबर श्रेणी के लोग हैं यहाँ पे. हाँ हाँ पंचायत के काम हो या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ काम हो तो लोग यहाँ करते हैं. और बरसात 3 महीना जब बरसात है वहाँ उस टाइम ये लोग हाँ खाना पीना पहले से जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि बरसात में इधर डेंगू या फिर कहीं जा नहीं पाते हैं ना. अच्छा पहुँच गए. लेफ्ट साइड में जो बस्ती दिख रही है अच्छा ये जो बस्ती है लेफ्ट साइड में
ये है भुट्टिया बस्ती और होम स्टे भी इधर ही है, एक छोटा सा होम स्टे। मैंने एक वीडियो में यूट्यूब में देखा था, कलकत्ता से एक आया था बंदा, उसने यहाँ पर स्टे किया था और छोटा सा बेसिक फैसिलिटीज है, लेकिन रात का टाइम में इवनिंग में अच्छा लगता है। इसका भी एक अलग सा चार्म है। तुम लोगों का उधर का जो व्यूज है, चार्म्स है, वो अलग है, इधर का अलग। एकांत टाइप का या फिर रिलैक्स करने के लिए एकदम कोई अगर मतलब सुनसान एरिया को पसंद करते हैं तो अच्छा होता है। हाँ कहाँ त सुनिया सुनिया तक मात्रै जाने हो होइन ए यही टावर ए टाउन हाँ तो यहाँ पर एक छोटा सा वॉच टावर बनाया गया है। बहुत पहले मैं जब आया था तो इधर पर कुछ भी नहीं था, वो वॉच टावर देखने के लिए ही आया हूँ। स्पेशल परमिशन लेकर ही इधर आ सकते हैं, लोकल व्हीकल्स ही ओनली अलाउड है, और ऑफिशियल्स कोई आए तो। ये है ना वॉच टावर। So this is the watchtower, चुनिया बस्ती वॉच टावर। हाँ ओह अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर रात को रेगुलरली एलिफेंट आता है। और ये जो मिट्टी का दाग देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा बॉडी यहाँ पर घिसता है। हो ये देखिए, यहाँ पर देखिए, इस जगह पर आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर रेगुलर एलिफेंट्स आते हैं। दिन का टाइम में भी आता है, दिन में भी आता है ना। ये तो उनका ही घर है, जब मर्जी वो आ जाते हैं। यहाँ आर्टिफिशियल उनके लिए वाटर बनाया गया है, सॉल्ट पे पानी वगैरह पीने के लिए। तो जयंती जब आप आए तो ज़रूर ये वॉच टावर का एरिया विज़िट कीजिए। आगे भी और एक वॉच टावर है, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत पहले मैं जब इधर आया था तो यहाँ पर वॉच टावर नहीं था, बर्डिंग के लिए आता था मैं। वो आगे जो तालाब देख रहे हैं छोटा सा, यहाँ पर आते हैं एलिफेंट्स और पानी पीते हैं। काम एंड क्वाइट प्लेस, बहुत शांत जगह है। ओनली चीरपिंग ऑफ बर्ड्स। ये कॉल सुनाई दे रहा है आप लोगों को पीछे, वो बार्किंग डियर है, वो डियर कॉल कर रहा है। चलिए थोड़ा और ऊपर जाते हैं। तो ये है हमारे सवारी फ्रीस्टाइल भैया, खड़ी है जंगल में। चलिए थोड़ा और ऊपर चलकर कुछ व्यूज़ लेते हैं। Beautiful place.
ना हाथी अगर हाथी नीचे आए तो टार्टल डॉग, हाथी जब आए तो वो अगर पानी में कूदे तो इधर उधर तो फेंकता ही है ना पानी। सो गाइस, मुझे आशा है कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मैं ये जगह जो विज़िट करने आया हूँ बहुत दिनों बाद, मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पर पहले टावर नहीं था। ये जो तालाब देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैं आता था अपने स्कूटर लेकर बर्ड्स फोटोग्राफी करने में। यहाँ पर रैप्टर्स वगैरह बहुत आते हैं, लेकिन एलिफेंट का बहुत डर रहता है। दिन में भी एलिफेंट रहता है। इधर नीचे दिखा है आप लोगों को कि एलिफेंट इस टावर में भी आते हैं। सो आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है मेरे तरफ से जितना हो सके दिखाने का, और कुर्बान ने भी अपना टाइम दिया है मेरे साथ। आई होप इन कमिंग डेज I could make more videos on Jayanti and Buxa, and I have a plan. I already told that I have to make a separate video only on Buxa and up hills, I mean fort, and उसके ऊपर जो areas है लेपचखा वगैरह, उस area के ऊपर और एक vlog बनाने का। So till then bye bye। इस ब्लॉग का मैं यही एंड करता हूँ। अभी रिटर्न होने का टाइम हो गया है। बहुत सारे डिस्टेंस बिटवीन द फॉरेस्ट आई हैव टू कवर टू रीच माई होम नाउ अलोन। तो अभी निकल पड़ना चाहिए, शाम भी होने वाला है। सो सी यू अगेन वेरी सून इन a new vlog in a new destination. If you like it, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon right beside the subscribe button and make a big thumbs up. See you soon in a new vlog. Stay safe, stay healthy.